लोक निर्णय 2024। Welcome listeners to our ongoing series on elections, Lok Nirnaya 2024. In this program, we'll bring you election-related developments, various updates, and analysis of general and assembly elections 2024. I am Nishit Kumar, and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024 कार्यक्रम में चुनाव से जुड़े समाचारों के साथ साथ स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ के साथ भी हम चर्चा करेंगे और कार्यक्रम में हमारे क्षेत्रीय संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे चुनाव तैयारियों के बारे में भी। आज स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं राजनीतिक विश्लेषक टी.आर. रामचंद्रन। टी.आर. रामचंद्रन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार। वेलकम सर। So let's listen to the news related to the elections, but first the headlines. In Bihar, opposition Grand Alliance finalizes seat sharing agreement, RJD to contest on 26 seats, Congress on 9 and left parties to field 5 candidates. AIMIM announces to contest on 16 Lok Sabha seats in Bihar. And in Election Commission's C-Vigil app, over 79,000 violations reported so far. Commission says over 99% complaints resolved. बिहार में विपक्षी महागठबंधन ने सीट बंटवारे के समझौते को दिया अंतिम रूप। राजद 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस 9 और वाम दल 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। AIMIM ने बिहार में 16 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का किया फैसला और चुनाव आयोग के सी-विजिल ऐप में अब तक 79,000 से ज्यादा उल्लंघन के मामले दर्ज। आयोग ने कहा 99% से अधिक शिकायतों का किया गया समाधान। सबसे पहली खबर, विपक्षी महागठबंधन ने बिहार में आज 40 लोकसभा क्षेत्रों के कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के बीच सीटें साझा करने की घोषणा की। सीटों के बंटवारों के अनुसार लालू प्रसाद के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस अपने 9 उम्मीदवार उतारेगी, जबकि वाम दलों को 5 सीटें दी गई हैं। In view of seat distribution, the CPI-ML will contest on 3 seats and 1 each will be contested by CPI-M and CPI. The seat sharing was announced by leaders of the Grand Alliance in Patna in a joint press conference. Barring some seats, Congress and RJD will contest on the same seats which were contested by these parties in 2019 Lok Sabha elections. Out of 26, the RJD candidates have already filed nominations for the 4 Lok Sabha seats of Aurangabad, Nawada, Jamui and Gaya in the first phase. बिहार में असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने AIMIM पार्टी ने लोकसभा की 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। इनमें पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, वाल्मीकि नगर और मधुबनी की सीटें भी शामिल हैं। AIMIM 11 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर चुकी है। इनमें किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, दरभंगा, भागलपुर, काराकाट, बक्सर, गया, मुजफ्फरपुर और उजियारपुर शामिल हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 4 सीटों गया, नवादा, जमुई और औरंगाबाद के नामांकन पत्रों की जांच कल होगी। इन सीटों के लिए कुल 72 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। In Maharashtra, Congress was forced to change its candidate from the Ramtek Lok Sabha constituency, a reserved seat for scheduled castes. The Congress has fielded Rashmi Barwe from the seat, but her caste certificate was declared invalid by the Social Justice Department's District Caste Certificate Scrutiny Committee yesterday. This led to the disqualification of Barwe's candidature, and thus the Congress fielded her husband Shamra Barwe from the seat. मध्य प्रदेश में लोकसभा के पहले चरण के अंतर्गत 6 सीटों पर भरे गए अभी 107 नामांकन वैध पाए गए हैं। उम्मीदवार कल तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा सीटों पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। An Election Commission's C-Vigil app is a hit with voters, with over 79,000 violations reported so far through the complaints app.
since the announcement of the general elections. EC said in a statement that over 99% complaints have been resolved and close to 89% of these complaints have been resolved within 100 minutes. More than 58,500 complaints received are against illegal hoardings and banners. More than 1,400 complaints received pertain to money, gifts and liquor distribution. Close to 3% of the complaints pertain to defacement of properties. Out of 535 complaints received for display of firearms and intimidation, 529 have already been resolved. 1,000 complaints reported were for campaigning beyond the prohibited period, including use of speakers beyond the permitted time. C-Vigil is part of the poll body's steps to leverage digital tech to ensure free, fair and inducement-free polls. जी रामचंद्रन जी, बिहार में आज विपक्षी महागठबंधन ने 40 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय जनता दल 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और कांग्रेस को केवल 9 सीटें ही मिल पाई हैं। वाम दल 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। कुल मिलाकर के हम देखें तो ये जो बंटवारा हुआ है सीटों का हालांकि काफ़ी इससे पहले काफ़ी विचार विमर्श भी हुआ, काफ़ी नाराज़गी भी रही कुछ दलों की, लेकिन जो कांग्रेस को केवल 9 उम्मीदवार उतारने का मौका मिला है, ये आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए मजबूरी बन गई है आरजेडी के साथ जुड़े रहना बिहार में अब? देखिए, मेरे ख्याल में इसको हम एक अलग सी दृष्टि से देखना चाहिए। कांग्रेस को अगर जितने सीटें वो मांगती हैं वो सब दे दिया होता तो नुकसान तो ओवरऑल गठबंधन को होगी, क्योंकि कांग्रेस सब सीटें जीत के नहीं आ सकती। और हमने देखा है कि कांग्रेस जिस स्थिति पे थी 10-12 साल पहले, उस स्थिति में फ़िलहाल नहीं है। काफ़ी राज्यों में उनकी जो अच्छी सीटें आती थी वो अब नहीं आ रही उनको। तो मेरे ख्याल में सब राजनीतिक दल चाहती है कि अगर आपकी क्षमता है तो आप उतने सीट लड़िए। अगर आप इतने आप सीट ज़्यादा लेंगे और हारेंगे ज़्यादा तो नुकसान तो अपने गठबंधन को ही पहुंचेगा। तो आखिरकार मेरे ख्याल में इसमें काफ़ी सोच विचार लोगों ने की है, और जो पार्टी सीटें लड़ रही हैं ज़्यादा वो इसी बात पे लड़ रही हैं कि कुछ राज्यों में हमारा गठबंधन बेहतर है, हमको सीट ज़्यादा मिलने की उम्मीद है, तो इसीलिए वो अपनी जगहों पे अड़ी हुई हैं। अब देखना पड़ेगा कि अल्टीमेट जब रिजल्ट्स आएंगी किसका गठबंधन सबसे अच्छा रहा। AIMIM contesting on 16 Lok Sabha seats in Bihar. This is very interesting. Now, AIMIM, do we really see AIMIM a force to reckon with in Bihar politics? And if so, how do you see this panning out? That's a very good and interesting question. I don't think AIMIM has the requisite potential to win so many seats in Bihar. But nevertheless, if they have put so many candidates out in the field, they are hoping to garner seats. I think some of the stalwarts and strong parties in Bihar are also facing a difficulty in winning the number of seats that they anticipated earlier. So I think everywhere there has been an effort among political parties, even those who have been doing very well in Bihar over the years have now had to take a back seat. Mm-hmm. So in the overall consideration, I think a lot of factors have come into play in Bihar as far as seat allocation is concerned. जी, नीतीश कुमार का बिहार में एनडीए में जाना, ये कुल मिलाकर के देखें तो पूरे चुनावी परिदृश्य को किस तरीके से आपको लगता है कि प्रभावित करेगा? क्या असर पड़ने वाला है बिहार में लोकसभा सीटों को लेकर के? देखिए, बिहार अपने आप में बहुत महत्व रखता है नेशनल इलेक्शंस में, और यहाँ पर कोशिश यही है कि बिहार से जितनी ज़्यादा सीट कोई भी राजनीतिक दल लाए या कोई भी दूसरी पार्टी आए तो वो अपने आप में उस पार्टी के लिए महत्व रखेगा। पर कोई भी पार्टी ये मान के नहीं चल सकती बिहार में कि उसको इतने सीट की गारंटी है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, और उन सीटों का बंटवारा आप कैसे करेंगे जब तक आप इस बात से सहमत नहीं है कि उनको इतनी सीटें आ सकती हैं। तो मेरे ख्याल में है बिहार
में हर बार जब इलेक्शंस होती है तो ये आर्ग्यूमेंट्स उभर के ज़रूर आती है। इस बात देखना पड़ेगा कि किस तरह का कि बंटवारा बाकी राजनीतिक दल मान के चलती है। नीतीश कुमार का पाला बदल के एनडीए में आना, एनडीए के साथ जुड़ना, ये एनडीए को फ़ायदा पहुंचाएगा ऐसा लगता है आपको? देखिए, ओवरऑल सिचुएशन को अगर देखेंगे तो नीतीश कुमार को लगा है कि अगर वो ये कदम नहीं उठाते तो शायद उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो मेरे ख्याल में वो चाहते हैं कि बाद में क्रिटिसिज्म उनके खिलाफ आए कि वो जिद करते रहे और उनको हम लोगों ने ये सीट मान लिया देने के लिए, और आखिरकार में जो नतीजे आए हैं वो बिल्कुल इसको नहीं दोहराता कि उनके पास इतनी दम थी कि बिहार में इतने सीट वो ला सकते हैं। तो मेरे ख्याल में एक एलिमेंट तो है लोगों में कि ज़रा संभल के चलें। देखिए, इलेक्शन और ख़ासकर जब नेशनल इलेक्शंस पे आप उतरें तो आपको सोच समझ के उतरना पड़ेगा। That's right. We'll continue the discussion, but it's time now to slip into a quick break. Do stay tuned in. Lok Nirnaya 2024, a special program on the general elections, every evening at 7 and repeat broadcast at 9:30 p.m. on Akashvani Gold. Updates of election activities, insights from regions and constituencies, expert opinion and analysis. In the world's largest festival of democracy. Stay tuned to Lok Prasarak ke Sath, Lok Nirnaya 2024. Welcome back. Mr. Ramachandran, it was very interesting. Just before slipping into the break, you were talking about the importance of Bihar politics when we see with the prism, with the spectrum of the national politics. Now, coming to the left parties, as we all know, over the past maybe a couple of decades now, it has been relegated to a corner, mostly kind of getting settled into in the state of Kerala, almost out of West Bengal. So Bihar getting just the left party is getting just 5 seats in Bihar. One point in time, the left parties were quite a formidable force so far as Bihar politics is concerned. How do you say this? I think Bihar as a state has a very, very strong political atmosphere. I think people by and large are extremely political in their approach, and therefore that does make a difference which party is able to gain in seats or lose. The opinion of people in Bihar matters a lot vis-a-vis a political party. If they are not able to gain the confidence of a political party, that political party is bound to lose, however strong it may claim to be in Bihar. Because the end result will ultimately show the results, how strong you are or how weak you are. So I think the point is well made that in Bihar, you have to think 4 times before you put in your, order saying, I would like to contest so many seats. That's right. You may not be given so many seats. And at the end of the day, the seats that you're given, let's say you're given 10, you ask for 10 and you're given 8 or you're given 6, you might not win even 3 to 4 seats. So it is a damage that people would like to avoid. जी रामचंद्रन जी, वाम दलों की बात हो रही है, तो अब आपको लगता है कि वाम दलों के सामने एक चुनौती ये भी है कि कैसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बरकरार रख पाएं वो अपना? मेरे ख्याल में वाम दलों की ये समस्या अब से नहीं है, ये बहुत सालों से चला आ रहा है। और वाम दल अपने आप को सोच समझ के नहीं आगे बढ़ाती। उनको लगता है कि उनका दल बन गया तो सीटें तो उनको आना ही आना है। देखिए, इस देश में कई राज्य ऐसे हैं जहाँ आप सोच समझ के चल सकते हैं कि आपको इतनी सीट मिलेंगी, पर आखिरकार जब वोटिंग होती है और रिजल्ट्स आते हैं तो इतनी सीट लोगों को और दलों को मिलती नहीं है, और वहाँ से तकलीफ लोगों को शुरू होती है। जी, आखिरकार राजनीतिक दल ज़रूर चाहती है कि वो जितना ज़्यादा समेट ले वो समेट के आ जाए, पर ऐसे नहीं होता राजनीति में और ख़ासकर इलेक्शंस में।
जी, और अब हरियाणा में चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता आकांक्षा फोन लाइन पर हमसे जुड़ गई हैं। आकांक्षा, आप सबसे पहले यही बताइए कि छठे चरण में मतदान होना है और निर्वाचन आयोग की ओर से अभी तक क्या व्यवस्था और तैयारियां आपको नजर आ रही हैं वहाँ पर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं और 1,98,000 करोड़ वोटर्स जो हैं वो इस बारी वोट कर पाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जो बहुत ही अलग सी बात है कि 120 साल के जो लोग हैं वो कम से कम 41 लोग हैं हरियाणा के अंदर, और सभी जो तैयारियां हैं वो निर्वाचन आयोग ने कर ली हैं। बहुत सारी जो एप्स हैं, मोबाइल एप्स जो हैं वो चालू करी गई हैं। कैंडिडेट नॉमिनेशन एप्लीकेशन है, सी विजिल ऐप के बारे में जैसे हम जानते हैं वो भी है, और अलग अलग जो एफिडेविट पोर्टल है, वोटर हेल्पलाइन ऐप है, और अलग अलग तरीके की जो मोबाइल और पॉलिटिकल पार्टीज को और कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स को जो है सोलिसिटेट करने के लिए ये चलाई जा रही हैं। इसके अलावा 24/7 ऑपरेशनल है, अगर वो आना चाहते हैं तो उनको लाने और ले जाने की जो सुविधा है वो दी जाएगी। जी, राजनीतिक दलों की ओर से घोषित उम्मीदवारों के बारे में क्या जानकारी है आपके पास, कुछ बताइए। मैं आपको बताती हूँ कि जैसे 10 लोकसभा सीट्स हैं, उसमें बीजेपी ने अपने 10 की 10 सीटों के ऊपर अपने प्रत्याशी जो है वो बता दिए हैं, कैंडिडेट्स जो हैं, पर अभी तक जो है ना तो जेजेपी जो एक बीजेपी के साथ अलायंस में थी, उन्होंने भी अभी तक नहीं, अभी, और ना ही कांग्रेस ने जो है अभी साफ तौर पे कोई लिस्ट नहीं आई है। तो अभी तक जो हमें अभी तक जो लिस्ट आई है वो 10 के 10 जो सीट्स हैं उसमें बीजेपी ने जो है अपने उम्मीदवार उतारे हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि कुछ एक सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने अपने जो नए लोगों ने ज्वाइन करा उन लोगों को टिकट्स दी हैं। जैसे नवीन जिंदल ने अभी हाल ही में ज्वाइन करा और नवीन जिंदल को, अशोक तंवर को उन्होंने सीट दी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी काम करती है कि वो अपने पहले सर्वे कराती है, सर्वे के बाद देखती है कि कौन से प्रत्याशी, कौन से कैंडिडेट्स जो हैं उन्हें उतारने चाहिए, अपने पुराने जो लोग हैं उनको भी अलग करके और नए लोग को भी उन्होंने मौका दिया है इस बारी। तो बहुत सारी सीटें हैं, जैसे रोहतक की सीट है, अंबाला की सीट है। अंबाला की सीट जो है वो रतनलाल कटारिया जी की स्वर्गवास के बाद उनकी पत्नी बंतो कटारिया को दी गई है। और तो कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि बीजेपी ने जो है अपने प्रत्याशी जो हैं वो पूरे उतार दिए हैं, पर अभी जो और पार्टीज हैं जैसे कि इंडियन नेशनल लोक दल है और जेजेपी है और कांग्रेस है, उन्होंने अभी अपने प्रत्याशी उतारने हैं। और अभी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि कहाँ कौन सी वाली सीट के ऊपर किस तरीके का मुकाबला होगा। आकांक्षा, इस जानकारी के लिए धन्यवाद। रामचंद्रन जी, हरियाणा की बात करें तो इस बार भाजपा और बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया है और जेजेपी ने भी सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। हरियाणा जैसे छोटे राज्य में हम ये भी देख रहे हैं कि 10 लोकसभा सीट में से बीजेपी ने 6 सीटों पर कांग्रेस के पूर्व नेताओं को टिकट दिया है। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरी चुनावी कसरत को? देखिए, मेरे ख्याल में हरियाणा में सब लोगों को दिक्कत हो रही है एक ये बनाने में कि उनको कितने सीटें आ सकती हैं। कैंडिडेट्स तो हैं, पर क्या ये उम्मीदवार जीत भी पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, इसका किसी को कोई भरोसा है नहीं। तो इसलिए ये कन्फ्यूजन तो है वहाँ, पर देखना पड़ेगा कि आखिरकार चुनाव के नतीजे जब आते हैं कि हरियाणा का स्थिति किस तरफ मोड़ लेती है। तो मेरे ख्याल में कुछ जल्दबाजी करना कुछ ठीक नहीं होगा इस वक्त। जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को सीएम बनाना, ये भाजपा का किस तरीके का मूव आपको दिख रहा है? इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? भाजपा पहले भी कुछ ऐसे मूव्स कर चुकी हैं जहां उनको लगता है कि जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं ये शायद अच्छा कर नहीं पाए, तो वो एक दूसरे आदमी को ले आए हैं।
कोशिश उनकी यही है कि हरियाणा में जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं उनको लगता है कि ये शायद बाजी जीत ना पाए, तो बेहतर है कि एक और लीडर को हम आगे खड़ा कर दें। हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक जीत ही आए, पर खैर ये कुछ चांसेस हैं, या आप जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं, तो इसके लिए इंतज़ार तो करना पड़ेगा। So now we are joined in by our Ranchi correspondent from Jharkhand, Shilpi. Shilpi, Jharkhand will go to polls in the last 4 phases of elections. What arrangements and preparations are done from Election Commission? Hello, good evening, Nishit. Good evening, Shilpi. Actually, the general elections in Jharkhand will be done in the last 4 phases. And the Election Commission and the CEO of Jharkhand has geared up since very beginning. They have been taking up all the measures to intensify the election and the voter awareness campaigns for the upcoming Lok Sabha elections. And a lot of activities are done under the SWEEP program. The Election Commission and the district administration are taking the cooperation of non-government organizations as well with the government organizations and the media persons to facilitate the young voters for the voter awareness campaigns. Because in this election, the electoral roll has seen an addition of over 5,87,000 first-time voters in the 18 to 19 age group. So this is quite a pretty number, and the Election Commission is hoping to see a rise in the voting percentage as the figure is like somewhat 5 lakhs above. So they are taking all measures to bring to rope in all these first-time voters, and so that they can cast their votes in this festival of democracy. Apart from that, security arrangements and the administrative preparations have also been intensified in Jharkhand. There have been regular checking. The SPs of all the 24 districts are continuously taking, inspecting the checkpoints. Since Jharkhand is a landlocked state, so all the directions have been given to the deployed magistrates and the policemen. And, as a result, many liquor is being seized from various places, and in fact the cash has also been seized. There have been many reports coming from various incidents, and polling personals are also being imparted training for the successful conduct of elections. शिल्पी, आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि पिछले काफ़ी दिनों हम देख रहे हैं कि झारखंड में सियासी उथल-पुथल का माहौल रहा है, और अब क्या राजनीतिक समीकरण बनते देख रही हैं वहाँ पर? जी, मैं आपको ये बताना चाहूँ कि राजनीतिक समीकरण यहाँ बहुत ही तेजी से बदल रहा है, क्योंकि पिछली बार के जो चुनाव थे उसमें भाजपा ने 11 सीटों पे जीत हासिल की थी, और उसके जो एनडीए अगर हम कहें तो उसने 1 सीट, तो टोटल 14 में से 12 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार जो थे वो जीतकर लोकसभा में गए थे। इस बार भी जो एनडीए है उसने अपने सभी 14 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि जो ग्रैंड अलायंस है जिसमें यहाँ पे आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अलायंस है, उन लोगों ने अभी तक उसमें से सिर्फ कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। और अभी ऐसा हो रहा है कि जेएमएम की जो एक विधायक थी सीता सोरेन जामा की, उन्होंने अपनी पार्टी को छोड़कर, मूलतः वो जेएमएम की थी, उन्होंने छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं भाजपा से पूर्व सांसद रहे, जो रांची के पूर्व 5 बार लोकसभा सांसद रहे, राम टहल चौधरी, उन्होंने कल कांग्रेस ज्वाइन किया है। तो इस तरह की चीजें काफी हो रही हैं कि लोग अपनी मूल पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। भाजपा के ही जेपी पटेल विधायक थे यहाँ पे, उन्होंने उनको हजारीबाग से टिकट मिली है कांग्रेस की, तो उन्होंने भी भाजपा को छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन किया है। ऐसे काफी समीकरण दिख रहे हैं, राजनीतिक समीकरण, जो कि झारखंड में इस बार काफी दिलचस्प होने वाली है। और भाजपा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, एनडीए की तरफ से पूरी कोशिश है कि वो सारे 14 सीटों पर अपनी जीत हासिल करे। Thank you so much, Shilpi, for your inputs. It's time to once again slip into a quick break. Do stay tuned in.
लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। Welcome back. Now we move across to Kashmir, where our correspondent Sunil is joining us. Sunil, what's the latest developments that are taking place in Jammu and Kashmir with regard to elections? Yes, Nishit. As you said, the scrutiny of nomination papers for the first phase has already been done, and I may tell you that in the first phase, Udhampur parliamentary constituency is going to polls on April 19th. After scrutiny of the papers, now there are 12 candidates in the fray, among which senior BJP leader Dr. Jitendra Singh and Congress leader Lal Singh are the prominent ones who will have a close fight for the seat. Nishit, I may also add here that the notification for the second phase in Jammu and Kashmir for Jammu parliamentary seat has already been issued yesterday, and various candidates of different political parties have started to submit their nominations. Right, Sunil. What measures with regard to the security have been made by the Election Commission in Jammu and Kashmir? Nishit, as you know that Jammu and Kashmir is a sensitive union territory, the Election Commission has accordingly taken all the requisite measures to ensure that the elections are held in free, fair and peaceful manner. For this, the Election Commission of India has directed all the security agencies to maintain a close vigil on LOC, international borders and other areas of the region. Nishit, meanwhile, all the assured minimum facilities of Election Commission of India are being ensured in all the 11,629 polling stations across the Union Territory. Over to you, Nishit. Thank you so much, Sunil. Sir, we would like to know 5 seats in Jammu and Kashmir, and all the 5 seats going in 5 different phases. Definitely a very tough terrain over there. How do you see this? It's been like that for quite some time in Jammu and Kashmir, but elections have been held and held properly. There's not been any big major problem of elections being derailed. So I think the elections will again be held properly over there. And the voter turnout in Jammu and Kashmir has been quite high over the last few times. जी, अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहला लोकसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है। देश दुनिया की भी निगाहें बनी हुई हैं। अलगाववादियों की भूमिका इस बार चुनाव में कहीं नज़र नहीं आती। क्या कहेंगे आपकी इस बार जो चुनाव होगा मतदाता खुल करके वोट देगा, अपना खुल करके सामने आएगा? मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कुछ सालों से मतदाता वहाँ पर वैसे भी खुल के वोट दे रहा है, तो अगर आपको लगता है कि इस बार स्थिति और बेहतर हो गई है तो मेरे ख्याल में इसमें कोई आशंका ही नहीं होनी चाहिए कि मतदाता बाहर आके अपने जैसे वोट करना चाहे वैसे वोट करेगा. And also one important point, sir, the changes of course post 370 abrogation and all, the reclassification as a UT and the detachment of Ladakh from its constituencies in the previous years have significantly altered. Very quickly, sir, your views on this. I think it's very significant. People have by and large appreciated what has really been done, and I think the voter percentage this time could be far higher than what has been seen in Jammu and Kashmir. It's a very critical part of the country, and therefore, yes, I think the efforts have been made to draw as many people as possible to come and exercise their franchise. T.R. Ramachandran ji, you discussed various issues and enlightened our listeners with your valuable input. Thank you so much, sir, for having come. Thank you. Thank you very much. कार्यक्रम में भाग लेने वाले हमारे संवाददाताओं और सभी श्रोताओं को भी बहुत-बहुत धन्यवाद. श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं. With this, we conclude this program. We'll bring you more election-related news and political developments tomorrow at the same time. Till then, Namaskar. लोक निर्णय 2024